गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट दैट इज इन फ्लाइट आफ्टर इट बीइंग थ्रोन और प्रोजेक्टेड इज कॉल्ड अ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मोशन, द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल which is in flight after it being thrown or projected is called projectile motion. It can be understood as the result of two separate simultaneously occurring components of motion along x and y axis. The component along the horizontal direction x axis is without acceleration. The component along the vertical direction is with constant acceleration under the influence of gravity. In our study, the air resistance is negligible and the acceleration due to gravity is constant over the entire path of the projectile. Okay, so what we have understood here, that projectile motion can be studied as a motion in the plane, which is a vertical plane. If we are projecting something in air with some initial velocity, making some angle with vertical direction or horizontal direction, then the particle will follow a curved path, that is a parabola. If we deduce the equation, that will come the equation of a parabola. This motion in a plane can be studied as a combination of two motions, two simple motions, means two motions along straight line, one along x-axis, other along y-axis. The motion along x-axis is with constant velocity because there is no acceleration in x direction, and that along y-axis is with constant acceleration, that is acceleration due to gravity. So motion along x-axis is a uniform motion, whereas the motion along y-axis is uniformly accelerated motion. The combination of these two gives the projectile motion. Okay, here resistance of air has taken to be negligible, but if velocity is very high, very much larger than the usual velocity, then air resistance comes into practice and that will be effective. Air resistance varies directly proportional to the velocity for low velocity and with higher power of velocity as the velocity increases. Okay. Acceleration due to gravity also varies with altitude, but here we consider that the projectile, that is the object which is being projected, is not moving much, is not moving much high. Therefore, we can take the acceleration due to gravity as constant. Equation of projectile motion. Suppose that the projectile is launched with velocity v0 that makes an angle theta 0 with the x-axis. This is xy plane and this is the path of the projectile. This is the initial velocity v0 which is making an angle theta 0 with the x-axis. The acceleration in y direction is minus g. Acceleration acting on the projectile is due to gravity which is directed vertically downward. A is equal to minus g, j in vector form. Ax is 0 and ay is minus g. The component of initial velocity v0 are, इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, v0 cos थीटा 0 और v0 sin थीटा 0. ठीक है, v0 cos theta 0 is the constant component of velocity and v0 sin theta 0 is a variable component because there is an acceleration in y direction.
So velocity along y direction will not be constant, it will vary. If the initial position is taken as the origin, then initial coordinates will be 0, 0. So after time t, if the coordinates of the particle which is being projected is x and y, then x can be written as x0 plus v0t plus half axt square. Because ax is 0 and x0 is also 0, so x after time t will be v0x into t, that is v0 cos theta 0 into t, x component of velocity multiplied by time. Because acceleration is 0, so third term and first term will be 0 and only the middle term will remain there. So x is equal to v0 cos theta 0 into t. Okay. Similarly, the y coordinate can also be calculated, y0 plus v0 yt plus half ayt square. Since y0 is 0, therefore this equation will become v0 sin theta 0 into t minus half gt square. These are the coordinates x and y after time t when the particle has been projected. Here we have considered that at t is equal to 0, the particle is at origin, therefore initial coordinates are 0 when time is 0. The components of velocity at time t are Vx, x component will be v0x plus axt and therefore v0 cos theta 0, and vy will be v0 sin theta 0 minus gt. Using first equation of motion, we can write this x component of velocity and y component of velocity. Okay, so this is the schematic diagram. After time t, the velocity is this. At the highest point, at the highest point, since the particle is not moving in vertical direction, it is moving only in horizontal direction, because the particle is not moving either up or down, because the particle is at highest point. Therefore, the vertical component of velocity Vy will become 0 and only x component of velocity will persist. So at highest point, the velocity will be v0 cos theta 0, which is the x component of velocity at initial point. Remember, throughout the path, the x component will remain constant and it will be v0 cos theta 0. Only y component of velocity will change. ओके ठीक है बच्चों, सिर्फ y कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज होगा, x कंपोनेंट वेलोसिटी का चेंज नहीं होगा थ्रू आउट द मोशन। चाहे पाथ के किसी भी पॉइंट पर आप जाएं, x कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ y कंपोनेंट चेंज होगा। समझ गए? एंड व्हेन द पार्टिकल विल हिट द ग्राउंड, the x component of velocity will remain same, v0 cos theta 0, whereas y component of velocity will be minus v0 sin theta 0. That is, velocity will be same as the velocity was in as the velocity was at the initial point in the upward direction. ओके जितना वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में थी इनिशियल पॉइंट पर, उतनी ही वेलोसिटी जहां पे हिट करेगा पार्टिकल वहां पे होगी वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो माइनस v0 sin थीटा। ओके, सो टोटल वेलोसिटी इनिशियल पॉइंट पे जितनी होगी वही फाइनल पॉइंट पर भी उतनी ही होगी। ठीक है, ओके। The horizontal component of velocity remains constant throughout the motion, ये मैंने बता ही दिया, but the vertical component reduces to 0 at its peak of the path and again increases in the opposite direction. The magnitude of velocity of projectile at an instant t is given by, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप जानते हैं x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। ठीक है, v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा 0 प्लस v0 sin थीटा 0 माइनस gt होल स्क्वायर। The direction of velocity of the projectile at time t is given by, direction कैसे पता करेंगे? y component divided by x component, that is v0 sin theta 0 minus gt divided by v0 cos theta 0। ठीक है बच्चों, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन का मतलब हुआ x और y में रिलेशन, है ना। जो कोऑर्डिनेट्स हैं
जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा पाथ पर तो उसके एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स चेंज होते जाएंगे। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में कोई भी एक इक्वेशन अगर हम पता कर लें, कोई भी एक इक्वेशन अगर हम डिड्यूस कर लें, then that equation will be the path of projectile. Okay, the shape of the path of a projectile can be found by mathematical equation. X is, आप जानते हैं अभी इसके जस्ट पहले आपने पढ़ा है v0 cos थीटा 0 इंटू टी, तो t यहाँ से निकाल लेंगे हम, टाइम निकाल लेंगे x अपान v0 cos थीटा 0। सिमिलरली y कंपोनेंट क्या था कोऑर्डिनेट का, y हो जाएगा v0 sin थीटा 0 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की जो वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट की है वो इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा v0 sin थीटा 0 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई v0 cos थीटा 0 माइनस हाफ जी एक्स अपान v0 cos थीटा 0 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे v0 से v0 कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा 0 डिवाइडेड बाई cos थीटा 0 tan थीटा 0 हो जाएगा। देन वी विल हैव y इज इक्वल टू tan थीटा 0 इंटू एक्स माइनस g बाई टू v0 cos थीटा 0 स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन जो है x में क्वाड्रेटिक है, y में लीनियर है ना। तो ऐसा इक्वेशन जो x में क्वाड्रेटिक हो और y में लीनियर हो, ऐसा इक्वेशन पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो ये पैराबोला का इक्वेशन है और पाथ पैराबोलिक होता है। सिंस g थीटा 0 एंड v0 आर कांस्टेंट, द वेव इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। ओके, जहाँ पे a जो है वो tan थीटा 0 है और b जो है वो g अपान टू v0 cos थीटा 0 होल स्क्वायर। The above equation is the equation of a parabola, therefore the path of the projectile is a parabola. ठीक है, प्रोजेक्टाइल का जो पाथ है वो पैराबोला होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर यही एयर रेजिस्टेंस को भी अगर हम काउंट करें तो पाथ जो है वो पैराबोला नहीं होगा, ठीक है, उस केस में पाथ डिफरेंट होगा। टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। पार्टिकल ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट तक कितने टाइम में पहुंचता है और टोटल वो कितनी देर हवा में रहता है, उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। जितनी देर वो हवा में रहता है उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट करते हैं, और ये होता है मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के टाइम का डबल, है ना। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम होता है उसका डबल कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिन से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम हाइट से फिर से ग्राउंड पर आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो टोटल जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का जो टाइम होगा उसका डबल होगा। ओके, लेट tm be the time taken for the projectile to reach at its maximum height and ti be the total time of flight of the projectile. At the point of maximum height t is equal to tm and vy is 0. Y component of velocity is 0, क्योंकि हाईएस्ट पॉइंट पर पार्टिकल ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना वाई डायरेक्शन में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है, ठीक है। तो वी वाई 0 कर देंगे। वी वाई इज इक्वल टू v0 साइन थीटा 0 माइनस जी टी, तो इसको 0 कर दिया हमने और t की जगह टी एम रख दिया, ठीक है। तो टी एम हो गया v0 साइन थीटा 0 बाई जी। ओके, एट t इज इक्वल टू टी एफ, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, जब पार्टिकल t इज इक्वल टू टी एफ टाइम जो है के बाद उसकी पोजीशन देखी जाएगी, तो उसका y कंपोनेंट क्या होगा, उसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, क्योंकि वो फिर से अर्थ पे आ गया ना, अर्थ की सरफेस पे वो स्ट्राइक किया तो वहां पर y कंपोनेंट 0 हो गया। तो y कंपोनेंट 0 कर दीजिए। सेकेंड इक्वेशन में v0 साइन थीटा 0 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये बताता है y कंपोनेंट आफ्टर टाइम t, ठीक है। तो इसको 0 कर दीजिए, ठीक। तो यहाँ से टी एफ की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक 0 आएगी, दूसरी 2v0 साइन थीटा 0 बाई जी। जो 0 वैल्यू आएगी वो इनिशियल पॉइंट के करस्पॉन्डिंग होगी, मतलब इनिशियल पॉइंट के लिए जहाँ से शुरू किया है उसने चलना,
ओरिजिन, वहाँ पर टाइम t 0 होगा और दूसरा टाइम t ये आएगा जिस पर y कंपोनेंट मतलब y कोऑर्डिनेट उसका 0 होगा। ठीक है, तो TF इज इक्वल टू 2v0 sin थीटा 0 बाई जी। आप ऊपर वाले इक्वेशन को भी डबल करके कर सकते हैं, मतलब आप ये लिख सकते हैं कि TF विल बी 2TM, देयरफॉर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। नोट दैट TF इज इक्वल टू 2TM बिकॉज द सिमेट्रिक नेचर ऑफ द पैराबोलिक पाथ। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कैसे पता करेंगे? ठीक है, थर्ड इक्वेशन से, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है y कंपोनेंट जो वेलोसिटी का है उस पर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी, है ना। इनिशियल कंपोनेंट क्या है? v0 sin थीटा 0। हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। ठीक है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2ah वाला फार्मूला लगाएंगे, है ना। तो आ जाएगा ये y इज इक्वल टू, ऐसे भी कर सकते हैं आप, इस तरह से भी कर सकते हैं, है ना, कि एट tm लेट hm be the maximum height of the projectile after time tm। tm वो टाइम है ना जिसपे प्रोजेक्टाइल जो है मैक्सिमम हाइट गेन करता है। ठीक है, तो इस टाइम पर जो y कोऑर्डिनेट होगा वही मैक्सिमम हाइट होगा। y कोऑर्डिनेट v0 sin थीटा 0 t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो इसी में t इज इक्वल टू टी एम की वैल्यू रख देंगे तो मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। एच एम इज इक्वल टू v0 sin थीटा 0 इंटू v0 sin थीटा 0 बाई जी माइनस हाफ जी और टी का स्क्वायर कर देंगे जो टाइम की जो वैल्यू आई है। ठीक, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, तो यह आ जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई 2g। इसको आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं। कैसे? फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में हाईएस्ट पॉइंट पर 0 होगी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी v0 sin थीटा 0 होगी, एक्सेलरेशन माइनस जी होगा और जो डिस्प्लेसमेंट है वो एच एम होगा, मैक्सिमम हाइट। तो जब वैल्यूज रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू v0 कॉस v0 साइन थीटा 0 का होल स्क्वायर माइनस 2ghm। 2ghm को इधर ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो हो जाएगा 2ghm इज इक्वल टू v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0, तो hm हो जाएगा v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 बाई 2g। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो दूसरा वाला दिया हुआ है, एट मैक्सिमम हाइट y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज 0, देयरफॉर थर्ड इक्वेशन लगाएंगे y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में, तो ये हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी भी बताया इस तरह से निकाल सकते हैं। ओके, रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल। रेंज का मतलब ये हुआ कि जहां से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया और जहां पे उसने लैंड किया, जहां पे उसने अर्थ को हिट किया, दोनों के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होती है उसको हम रेंज कहते हैं। ठीक, तो रेंज कैसे पता करेंगे? लेट r be the range of the projectile after time tf, time of flight. It is the horizontal distance covered by the projectile from its initial position to the position where it passes, means where it lands. Y is equal to 0. Okay, so x is equal to v0 x into t, ये वाला जो फार्मूला है ये हो जाएगा। अब ये लैंड कहाँ पे करता है? लैंड कहाँ पे करता है और कितनी देर के बाद लैंड करता है? आफ्टर टाइम ऑफ फ्लाइट इट लैंड्स। कितना टाइम लगता है इसको पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल से और पॉइंट ऑफ हिट तक जाने में? इसको लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितना डिस्टेंस वो कवर करेगा उतना ही रेंज होगा। बात समझ में आ गई, है ना। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो कवर्ड डिस्टेंस होगी वो कैसे निकलेगी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन तो है नहीं,
कांस्टेंट वेलोसिटी है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस आ जाएगा, और टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर। तो v0 cos थीटा 0 इंटू टी एफ, और टी एफ की वैल्यू 2v0 sin थीटा 0 बाई जी होती है। तो 2v0 sin थीटा 0 cos थीटा 0 बाई जी हो जाएगा, 2v0 स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी v0 यहाँ भी है, v0 यहाँ भी है, तो 2v0 स्क्वायर sin थीटा 0 cos थीटा 0 बाई जी हो जाएगा, है ना। v0 स्क्वायर बाई जी बाहर ले लेंगे, 2 sin थीटा 0 cos थीटा 0 क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा 0, तो रेंज हो गई v0 स्क्वायर sin 2 थीटा 0 बाई जी। ठीक है, नोट दैट द रेंज विल बी मैक्सिमम फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन। यहाँ पर देखिए v0 स्क्वायर और g ये दोनों ही कांस्टेंट्स हैं, तो रेंज किस पर डिपेंड करेगी, थीटा पर। साइन 2 थीटा 0 की जो वैल्यू है जब वो मैक्सिमम होगी तो रेंज मैक्सिमम होगी। और आप जानते हैं कि साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू +1 होती है, और ये 90 डिग्री के एंगल के लिए होती है। ठीक है, तो साइन 2 थीटा 0 1 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 थीटा 0 90 हुआ या थीटा 0 45 हुआ। ठीक है, 2 थीटा 0 90 डिग्री एंगल होगा, तो थीटा 0 कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो 45 डिग्री पर अगर कोई प्रोजेक्ट किया जाएगा कोई ऑब्जेक्ट, तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे जा करके गिरेगा, उसकी रेंज मैक्सिमम, और मैक्सिमम रेंज होगी कितनी, v0 स्क्वायर बाई जी। ठीक है, समझ गए। इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी 45 डिग्री पर। मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला है v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 0 डिवाइडेड बाई 2g, है ना, डिवाइडेड बाई 2g। तो क्या हो जाएगा, v0 स्क्वायर साइन 45 की वैल्यू 1/√2, इसका स्क्वायर होगा तो 1/2 हो जाएगा, और नीचे 2g पहले से ही है, तो v0 स्क्वायर बाई 4g हो जाएगा, है ना। तो जब 45 डिग्री पर पार्टिकल प्रोजेक्ट किया जाएगा, तो रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट का, रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट का 4 टाइम्स हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर रेंज जो है वो मैक्सिमम हाइट का 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, RM इज इक्वल टू 4HM एट 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री पर जो रेंज होगी वो मैक्सिमम हाइट का 4 टाइम्स हो जाएगी। रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज सेम फॉर कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ 45 डिग्री पर रेंज मैक्सिमम होगी, और दो एंगल्स जिनका सम 90 है ना, जैसे मान लीजिए 30 और 60, तो 60 डिग्री पर भी वही रेंज होगी जो 30 डिग्री पर होगी। ठीक है, फॉर द एंगल 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा, 2 theta is 90 degree plus 2 alpha and 90 degree minus 2 alpha respectively. The value of sin 90 degree plus 2 alpha and sin 90 degree minus 2 alpha are the same and are equal to cos 2 alpha. Therefore, ranges are equal for equations which exceed a fall short of 45 degree by equal amount of alpha. In other words, the complement angles of elevation, the range will be same. That is, if theta 0 and 90 minus theta 0, the values of sin 2 theta 0 and sin 180 minus 2 theta 0 are same. ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनके लिए रेंज सेम होती है ना। आप ऐसे भी देख सकते हैं, sin 2 थीटा 0 है, sin 2 थीटा 0, है ना।
आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है ना। तो आप यहाँ पे थीटा 0 की जगह अगर अल्फा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन 2 अल्फा। और थीटा 0 की जगह 90 माइनस अल्फा रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 2 अल्फा, फिर से वो आ जाएगा साइन 180 माइनस 2 अल्फा, फिर से हो जाएगा साइन 2 अल्फा है। तो दोनों ही केसेस में साइन की वैल्यू सेम होती है। बात समझ में आ गई, क्योंकि साइन 2 थीटा लिखा हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं उनके लिए साइन 2 थीटा की वैल्यू सेम होगी, इसीलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए रेंज भी सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।